already completed our topic first. Today we will start topic topic second. That is the making of nationalism in. इससे पहले हम लोग पढ़े थे नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इसका क्या रोल था नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में रोल। इसमें है कि शुरुआत नेशनलिज्म की कैसे। तो when we will see mid of 18th century, that means during mid of 18th century Europe, there were no nation state as we know them today. Today we know about Germany, Italy, Switzerland, Belgium, after that Netherlands, Finland and other nation states. During mid 18th century Europe, there were no nation states like Germany, Italy, Switzerland or any other nation state. They were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. That means there were no nation states like Germany or Italy or England during mid 18th century. They were divided into different other kingdoms and different rulers ruled over those territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies in which lived diverse people. That means in Eastern and Central Europe, they were under autocratic monarchies in which diverse people live. Diverse people live means they have diverse or different culture, different religion, different language. So in Eastern and Central Europe, rulers ruled over diverse population and they did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. उनका अपना कोई common culture नहीं था. Diverse population रहता था जिनका अलग ट्रेडिशन था, अलग कल्चर था, अलग लैंग्वेज था और वो लोग अपने आप को एक नहीं मानते थे. उनका अपना एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था और इसी कारण से वहाँ पे नेशन स्टेट्स का क्रिएशन नहीं हुआ. तो अगर हम लोग ये करें और तो ड्यूरिंग मिड 18th century there were no nation states in Europe like today. जैसा आप अभी यूरोप में देख रहे हैं अलग अलग नेशन स्टेट्स, उस तरह का कोई भी नेशन स्टेट यूरोप में था ही नहीं. Today's nation states like Germany and Italy were divided into different kingdoms. Divided into different kingdoms ruled by different. ये जर्मनी है, इटली जो अभी का है वो बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड था और उसके ऊपर जो अलग अलग जो राजा लोग हैं वो लोग रूल करते थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप
were under autocratic monarchies, in which diverse population live। जो ईस्टर्न यूरोप था या सेंट्रल यूरोप था, वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के द्वारा, जो रूलर्स थे, ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, उनके द्वारा रूल किया जाता था, जहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर को मानने वाला जो पॉपुलेशन है वो रहता था। तो ये उस समय की स्थिति थी। मिड 18th सेंचुरी का जो यूरोप था, ये वहाँ का कंपोजिशन था। ऐसा जो मिड 18th सेंचुरी का यूरोप था। इसके अलावा लैंडेड aristocracy was the most dominant class in the continent। जो डोमिनेंट क्लास था जो सोसाइटी में था, वो था लैंडेड अरिस्टोक्रेसी। जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्लास था। Their families were connected by ties of marriages and they mainly spoke French for diplomacy। हाई सोसाइटीज। तो अगर उस समय के हम यूरोप को देखें तो during mid 18th century there were no nation states in Europe like today। Germany and Italy were divided into Germany, Italy and other states also, they were divided into different kingdoms ruled by different rulers। जो जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, पुर्तगाल है, they were divided into different kingdoms ruled by different rulers। Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies in which diverse population lived। Landed aristocracy was the most dominant class in the जो dominant class था, सबसे powerful class था सोसाइटी में, वो landed aristocracy था। मतलब एक तरह से जो नॉबल्स थे वो लोग थे, और वो लोग अपने आप को, जो भी अरिस्टोक्रेसी थी, जो नोबल्स थे, वो अपने आप को एक साथ जोड़ कर रखते थे। कहीं का भी नोबल हो, यूरोपियन किसी भी स्टेट का वो नोबल हो, अपने आप उनके बीच में काफ़ी यूनिटी थी, और उस यूनिटी को किस प्रकार वो लोग बरकरार रखते थे, और थ्रू टाइज ऑफ मैरिज, शादी विवाह उनके बीच में होती थी, और इस तरह से वो लोग काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते थे। इसके अलावा दे मेनली स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। डिप्लोमेसी के लिए वो लोग जनरली जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको यूज़ किया करते थे। वो लोग फ्रेंच ही बोलते थे, आपस में उनकी जो बातचीत होती थी वो फ्रेंच में होती थी।
इसके अलावा जो लोअर क्लासेस हैं उसको भी देख लिया जाए। The majority of the population was of peasantry. जो एक बड़ा पॉपुलेशन, वो जो अरिस्टोक्रेसी था उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, एक वो स्मॉल ग्रुप था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। आप लोग को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी बताए थे कि जो थर्ड स्टेट था, वो थर्ड स्टेट मान कर चलिए कि अराउंड 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन था। तो उसी तरह से जो पीजेंट्री था वो पॉपुलेशन का एक काफ़ी बड़ा एक पार्ट था, काफ़ी एक बड़ा भाग था। तब जो अगर उनके प्रोपोर्शन को देखा जाए पॉपुलेशन में, तो सबसे ज़्यादा पीजेंट्री जो किसान थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब देख लिया जाए वेस्ट यूरोप में, इन वेस्टर्न यूरोप, Western Europe, in Western Europe, the land was cultivated by tenants and small holders, but in Central and Eastern Europe, land holdings were under Central and Eastern Europe, land holdings were under nobility, which were cultivated by serfs. तो अगर हम लोग लैंड होल्डिंग्स के पैटर्न को देखें, तो जो वेस्टर्न यूरोप था वहाँ पे जो लैंड्स था वो स्मॉल ओनर्स, मतलब छोटे छोटे किसान थे, उनकी ज़मीन उनकी अपनी ज़मीन थी, या फिर जो छोटे छोटे जो टेनेंट्स थे वो खेती करते थे, बदले में टैक्स देते थे। लेकिन जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप था वहाँ पे क्या था कि जो नोबिलिटी थी, या फिर आप इसको अरिस्टोक्रेसी बोल सकते हैं, नोबिलिटी एंड अरिस्टोक्रेसी, उनके हाथ में जमीन थी और उसको कल्टीवेट करवाया जाता था सर्फ्स के द्वारा। सर्फ जो सर्फ थे, दे वर लाइक ए बॉन्डेड लेबरर्स, इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। जो वास्ट स्टेट्स था उसी के ऊपर ये लोग रहते थे और वहीं पे ये लोग खेती करते थे, एक तरह से बॉन्डेड, बिना पैसे के इनको वहाँ पे काम करना पड़ता था। ये लोग रहते थे ऑन वास्ट स्टेट्स कल्टिवेटेड बाय सर्फ। जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में था, जो लैंड होल्डिंग्स था नोबिलिटी और अरिस्टोक्रेसी के अंडर में थी, और उसको सर्फ के द्वारा, जो कि बॉन्डेड लेबरर्स होते थे, बिना किसी वेजेस के उनको काम करना पड़ता था,
उनके द्वारा जो लैंड था उसको कल्टीवेट करना किया जाता था। और मेनली इन वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप emergence of commercial groups took place वेस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप था वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले हो चुका था, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इसलिए वहाँ पे एक नया ग्रुप था जिसको कि हम लोग कॉमर्शियल ग्रुप बोल सकते हैं या मिडिल क्लास बोल सकते हैं। वो जो वेस्टर्न यूरोप था, अगर वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों को देखा जाए तो जो लैंड्स के छोटे, जैसे वहाँ छोटे किसान थे जिनका कि अपना लैंड होल्डिंग्स हुआ करता था, या टेनेंट्स थे जिनके पास अपनी लैंड होल्डिंग्स थी, अपना मालिकाना हक उनके पास रहता था। लेकिन जो सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप था वहाँ पे अपना मालिकाना हक उनके पास में नहीं होता था, और जो सर्फ थे, मतलब एक तरह से बॉन्डेड लेबरर्स, वो लोग फास्ट बड़ा बड़ा जो स्टेट्स होता था उसके ऊपर काम किया करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम करना पड़ता था। मतलब वहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स था वो डायरेक्टली होता था नोबिलिटी या अरिस्टोक्रेसी के अंडर में होता था। और वेस्टर्न यूरोप में और कुछ पार्ट्स जो था सेंट्रल यूरोप, वहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और एक नया ग्रुप जो है कॉमर्शियल क्लास आया जिसको कि हम लोग मिडिल क्लास बोल सकते हैं। Industrialization, a new group came into society. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण जो नया ग्रुप उस सोसाइटी में आया और वही था मिडिल क्लास। नया ग्रुप आया जिसको कि हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं। और तो अगर हम लोग एक बार इसको देख लें तो अगर यूरोप को देखा जाए तो मिड 18th सेंचुरी में आज का जैसा यूरोप देख रहे हैं, यूरोप वैसा नहीं था। जर्मनी हो गया, इटली हो गया, या फिर दूसरे जो यूरोपियन नेशन स्टेट्स हैं वो सब नेशन स्टेट्स वहाँ पे नहीं थे। वो लोग डिफरेंट किंगडम्स में, डिफरेंट डचीज़ में, डिफरेंट कैंटोन्स में डिवाइडेड थे, और वहाँ पे एक डाइवर्स पॉपुलेशन रहता था, मतलब अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन लोगों का था। इसके अलावा एक जो और जो ग्रुप था सोसाइटी का वो था अरिस्टोक्रेसी था, वो सबसे डोमिनेंट ग्रुप सोसाइटी में था। अगर बाकी लोगों का हम बात देखें तो जो पीजेंट्री था वो पॉपुलेशन का एक काफ़ी बड़ा पार्ट था। बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ही एक नया ग्रुप मिडिल क्लास जो है या फिर जो कॉमर्शियल क्लास है वो सोसाइटी में आया, और उसी के साथ जो नेशनलिज्म का है वो भावना वो धीरे धीरे जोड़ पकड़ना शुरू हो गया। तो मिडिल क्लास एक तरह से मान सकते हैं कि नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया मिडिल क्लास में। जो
बाकी टॉपिक है, इसको बाद में मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू।